everyone, welcome to you all in today's session of environment. Open your textbook, open page number 43. Read. Bolu says, Elephant Dada, now I have understood very well. बोलू ने कहा, हाथी दादा, अब मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गया हूँ. Elephant says, Dear son Bolu, in many ways diversities can be seen among animals and plants. हाथी ने कहा, बेटा बोलू, बहुत सारे अलग अलग तरीकों में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में डाइवर्सिटीज यानी कि विविधता दिखाई देती है. बोलू सेज, यस दादा, हाउ मच वेरिएशन इज सीन इन द अपीयरेंस, हैबिटेट एंड इन ऑल. बोलू ने कहा, हाँ दादा, हम जब सभी लोगों को देखते हैं तो उसके दिखावे में, उनके घरों में और उनका जो सब कुछ है उसमें कितना सारा वेरिएशन है, मीन्स कितनी सारी विविधताएं हैं. Elephant says, not only with respect to the appearance and habitat, but with respect to the importance also there is diversity among us. हाथी ने कहा, सिर्फ उनके दिखावे में या उनके घरों में ही जो विविधता है उसकी वजह से हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पर उनकी विविधता की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. डिस्कस नेम ऑफ द थिंग्स यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. Here in these boxes we have to write the names of the things which useful in our daily life. जो हमारी रूटीन लाइफ में, हर रोज की जिंदगी में हमें यूजफुल है ऐसी चीज़ों के नेम्स लिखने हैं. From whom are these things obtained? और ये जो यूजफुल थिंग्स है हमें कहाँ पर से मिलती है, प्लांट में से या एनिमल में से. उसके आगे हमें राइट करना है chapati and bread that we get from plant. So put here right mark. Fruit, we get fruit from the plant. Put here right mark in plant. Wooden table, that also we get from the plant. Wool, we get wool from sheep, camel and goat. So animal gives us wool. Put right mark in animal. Broom, यानी कि झाड़ू. So we get broom from the plant. Leather shoes, we get all the leather from the animals. So all the leather materials are made from leather and it is got from the animals. So put here right mark. Fiber from the plant. Milk from animals. Animal gives us milk. Cow, buffalo, goat, camel, they all give us milk. Eggs. Eggs also we get from the animals. Hens, ducks, goose, they all give us eggs. Notebook, we get notebook from the plant because we get paper from the plant, and after procedure we get notebook, so we get it from the plant. Here you put the right marks in all these boxes. Now turn the page. Open page number 44.
Discuss importance of plants. Here some discussion is given. We have to discuss about importance of plants and then after importance of animals. So the importance of plants. Plants means trees. Trees give us shade. Trees keep the atmosphere cool. Trees हमें छांव देते हैं, वो वातावरण को ठंडा रखते हैं. ट्रीज आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन, वो बारिश लाने में भी बहुत हेल्पफुल है. दे स्टॉप सॉइल इरोजन, वो जमीन के बहाव को रोक देते हैं. दे गिव अस फ्रेश एयर, हमें ट्रीज में से फ्रेश एयर मिलती है. कैसे? बिकॉज वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन and trees breathe in carbon dioxide. So, trees breathe out oxygen that we breathe in and we breathe out carbon dioxide which trees take in. They limit the desert. Trees जो है वो deserts को stop करते हैं. क्यों? जहाँ पे trees start होते हैं वहाँ desert खत्म होता है. सो दे लिमिट द डेजर्ट. दे गिव अस वुड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर. ट्रीज में से हमें लकड़ियां मिलती है जिससे हमें फ्यूल और फर्नीचर भी मिलता है. दे गिव अस मेडिसिन, ट्रीज में से दवाइयां बनती है. प्लांट्स गिव अस फूड, ग्रेन्स, पल्सीज, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स. मीन्स प्लांट्स में से हमें खाने की चीजें मिलती है. प्लांट्स गिव फ्रेग्रेंट एंड कलरफुल फ्लावर्स दैट इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग्स. प्लांट्स हमें बहुत अच्छी खुशबू वाले और अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स देते हैं जो हमारे आसपास की सुंदरता को बढ़ाते हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स. Then next is importance of animals. So the importance of animals. Animals like cow, buffalo and goat give us milk. So animals give us milk. Animals हमें दूध देते हैं. काउ, बफेलो और गोट जैसे एनिमल्स में से हमें मिल्क मिलता है. Animals like ox, horse, donkey and camel are used to carry heavy loads and humans from one place to another. बहुत सारे एनिमल्स हमारे हैवी लोड को कम करते हैं. हम अपना सामान उसके ऊपर रखते हैं और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हेल्पफुल है. Then animals like ox and buffalo are useful in agriculture. Ox और buffalo जैसे एनिमल्स हमें खेती में बहुत ही यूजफुल होते हैं. Animals like camel and horse are used for riding and going from one place to another. कैमल और हॉर्स जैसे एनिमल्स के ऊपर हम बैठकर उसकी राइडिंग करते हैं और वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं. डॉग लुक्स आफ्टर अवर हाउसेस. कुत्ता हमारे घर की देखरेख करता है. मैन्योर इज मेड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ एनिमल्स. मैन्योर यानी कि खातर एनिमल्स के वेस्ट में से बनता है. When animals die, their hide can be used for making articles like belts, bags, shoes, wallet, etc. जब जानवर मर जाता है तो उसकी जो स्किन होती है वो बेल्ट, बैग, शूज और वॉलेट जैसी चीज़ें बनाने के लिए काम आता है. शीप गिव अस वूल. शीप हमें वूल देता है. Creatures like crow, vulture and kite eat the dead and decaying animals and make our earth clean. Crow, गीद और kite जैसे creatures है जो birds है वो
जो मरे हुए जानवर होते हैं उन्हें खा जाते हैं और हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी को क्लीन रखते हैं। Hen lays eggs which are used as food. Hen यानी कि मुर्गी हमें अंडे देती है जो खाने के लिए यूजफुल है। Birds like manna eat the insects that harm crops and hens help farmers. मैना जैसे पंछी छोटे छोटे जीव जंतुओं को खा जाते हैं और वो जीव जंतु हमारे क्रॉप्स को खराब करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बर्ड्स उन्हें खा जाते हैं तो फार्मर्स की भी हेल्प होती है। बर्ड्स एंड एनिमल्स हेल्प इन द स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स। बर्ड्स और एनिमल्स सीड्स को, प्लांट्स के सीड्स को सभी अलग अलग जगहों पर स्प्रेड करते हैं। सो दे हेल्प टू ग्रो द प्लांट्स इन डिफरेंट प्लेसेस। अर्थवर्म एंड स्नेक आर हेल्पफुल इन फार्मिंग। Earthworm and snake are helpful in farming. So earthworm और snake जो फार्म से उसके नीचे होते हैं तो उसके अंदर चलकर जमीन को, सॉइल को फर्टाइल करते हैं, तो फार्मिंग में भी वो हेल्पफुल है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। Here we complete our today's session. Have a nice day. Goodbye.